यार अच्छा है, अपने इंडिया में तो ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा कोई न्यूड बीच सा हो, ऐसा कुछ सा बीच बस, और नहीं दिखा सकते यार बस। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है सबका। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो नहीं हो? बताना कमेंट सेक्शन में। अभी मैं अपने होस्ट के घर पे हूँ। दिस इज ओल्गा फ्रॉम सोची। So you've been living in Sochi for 10 years now? Almost, yeah. Almost. But you're from Krasnodar. Yeah, the capital of this region. ओल्गा बड़ी मस्त है यार, उन्होंने बड़ी खातिरदारी करी है. She has made us this special tea. What is this called in Russian? Like, is there a word? Ivan chai. Ivan chai. Or we also call chai in Hindi. Ivan is a kind of name of popular Russian name. Man's name. Oh, okay, Yeah. Ivan. In chai, you know what is chai? Chai, of course. If India. Chai is chai. So, ओल्गा हमें ये भी बता रही थी कि रशियन चाय मिलती है यहाँ पे, and you get Indian chai also? Yeah. Yeah. And you've been to Nepal too, right? Yeah. Why you not come to India? I don't know. I'm just joking, of course. तो ओल्गा यार, yeah, sure. Short vacation. Short vacation. And you did Annapurna circuit. Yeah. ट्रैकिंग हाइकिंग का काफी शौक है. एज यू कैन सी मैप भी बना हुआ है ऊपर. एंड दीज आर ऑल द कंट्रीज यू हैव गॉन, राइट? Yeah. काफी कंट्रीज गई हैं ओल्गा. No India yet. But I hope, I will visit it. ओल्गा यार, Someday. ओल्गा काफी एक्सपीरियंस ट्रैवलर हैं. मतलब उन्होंने हिच हाइक करी है पूरी साउथ अमेरिका में 22,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर्स, राइट? In South America? Like, I calculated it's like 20 or maybe Wow. like 20,000 or something like this. 20,000, that's still a Because lot. It's difficult to calculate, but yeah. Yeah, मैं यार इतना हिचहाइकर हूँ नहीं. I have not hitchhiked much. I want to, but then it's just something or the other comes up. You need to learn language first. So. Yes, in Russia, do you think hitchhiking is easy? Like, Yeah, it's easy, but it's easy. of course, to conversate with people, you need to learn Russian. Russian. first. Do you speak Russian now? You think I know how to speak Russian? Like, यार मेरी रशियन काफी गंदी है. मीनिया रूस की नियत का रशो. It was that good. यार मेरी रशियन तो अच्छी नहीं है. अपने हिचहाइक की देखनी है तो शुभम की वीडियोस देख लेना यार. वो there is this traveler Shubham. He has traveled in Russia. He hitchhiked all the way to Yakut. Yeah. From I don't know where. यार कहाँ से करा था बता देना कमेंट में. बट ओल्गा का अपार्टमेंट ऐसा है, काफ़ी अच्छा सा नाइस सा अपार्टमेंट है. और यार काफ़ी खातिरदारी हो रही है. रशियंस की हॉस्पिटैलिटी वैसी आर ओचन का रशो. एंड दिल के भी अच्छे होते हैं, साफ होते हैं लोग. तो ऐसा है कुछ. ओल्गा ने अभी चाय बनाई थी, हमने कल रात को डिनर खाया था. मैंने ज़्यादा कल व्लॉग करा नहीं था बिकॉज मैं यहीं पे पहुंचा था. बस इतना ही है. हाँ, यस. ओल्गा के अपार्टमेंट से ब्लैक सी का व्यू दिखता है. मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ. देख सकते हो यार, कल मैंने शायद ब्लैक सी पिछली वीडियो में दिखाया था. और उनके अपार्टमेंट से ऐसा व्यू दिखता है. मस्त सा व्यू है. And some people, for example, they can't even understand Hindi because they speak our languages. In South India, like less people prefer speaking Hindi. They prefer speaking English, and but in the north, pretty much everybody knows how to speak Hindi. Okay. At least they understand what you're saying. Exactly. So that is what I was saying. मैं यार ओल्गा को ये बता रहा था कि मैं ओल्गा से बात करूँगा तो मैं इंग्लिश में बात करूँ. I can only speak in English with you, right? Yeah. Because if I speak in Hindi, you will not understand anything. Sorry. It'll be like no, like My Indian is much poor than your Russian. Yeah, of Your course. Russian is better. My Russian is better. Okay, यार अच्छा compliment मिल गया मेरे को. But you understand some words because my Hindi and English is kind of mixed. मैं कभी हिंदी बोलता हूँ, कभी इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ. But if I start speaking in Hindi, you will not understand anything. And if you start speaking in fluent Russian, I will not understand anything. Okay, but do you understand slow Russian? By the expressions, I can tell what the person is talking about. Like sometimes. By context. So you can, for example, say something. I'll try to think that what you are saying in Russian.
something. When people ask you to say something, you need to think what is something. What's something? Anything random. Что-нибудь. How are you doing? No. No, it means something. Okay. भाई रहने दो, अपनी रशियन काफी बेकार है। रहने दो। My Russian is not नियत का रशियो। Там тоже есть нюанс, но это уже там дальше. कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। चलते हैं यार, सोची सिटी एक्सप्लोर करते हैं। अरे बंद हो जा भाई, अब बंद हुई है। इतने दिनों से मैंने सिर्फ चाय कॉफ़ी पी है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं यार यहाँ पे लोग। मेरे को लगा था अपने इंडिया में पीते हैं, बट यहाँ पे यार अलग लेवल की पूरे दिन इनकी चाय चलती रहती है। तो मैंने सोचा मैं सुपर मार्केट आके अपना ये दूध लेता हूँ। फ़नी चीज़ ये हुई, लेना तो दूध चाहता था मैं, बट ये योगर्ट निकला। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चलता है, पी लेते हैं भाई, जो मिलता है पी लेते हैं। क्योंकि यार मेरे को ये साइन समझ नहीं आएगा ना, मतलब ये मेरे को लग रहा था दूध ही है, 2.5% वाला दूध है, निकला ये। और यार ये रेलवे की पटरियों पे चल रहा हूँ मैं, ट्रेन का ध्यान दे रहा हूँ मैं, ये मत सोचना नहीं दे रहा। और ब्लैक सी बिल्कुल साइड पे, क्योंकि मैं एक बीच की तरफ जा रहा हूँ आगे। मेरे को एक हाइक करनी थी, बट यार ऑनेस्टली मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ आज, क्योंकि यार कंटिन्यूस ट्रैवल हो रहा है ना इतने दिनों से, मतलब ये तीसरा हफ्ता है मेरा, और हमने यार महीनों के लिए ट्रैवल करना है, तो अपने आप को इतना थका नहीं सकता मैं। हाइक कल कर लेंगे शायद, कल ओल्गा का छुट्टी भी होगी, तो हो सकता है कल कर लें। ऐसे यार पूरी कोस्ट लाइन बनी हुई है, जब सन होता है तो लोग यहाँ पे आके रिलैक्स करते हैं, मस्ती करते हैं। सही है, हम भी वही करते हैं आज। भाई तो जहाँ पे हूँ मैं, पता नहीं यार, मैं वॉक कर रहा था और मैंने मैप पे देखा तो ये एक बीच है, बट ये न्यूड बीच है, मतलब बेसिकली लोग यहाँ पे पूरे कपड़े या वस्त्र उतार के बैठे होते हैं। तो मैं दिखा नहीं सकता यार, ऑफ कोर्स लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा यहाँ पे। मैं लॉकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं अपने कपड़े रख सकूँ अंदर। बस बैठा ही हूँ, इंजॉय कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है करने के लिए। यार यहाँ इस बीच पे मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पे मेरे को कैमरा निकालने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं उनको शूट करूँ। सही है यार, अच्छा अपने इंडिया में तो ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा कोई न्यूड बीच सा हो, बट यहाँ पे है, ठीक है, अच्छी बात है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा न्यूड बीच पे आने का। अपने लिए एक शैक सा ले लिया, ये शैक नहीं है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। ये इसको लेके बैठ गया आराम से, आगे बीच है, देख पा रहे हो आप, ऐसा कुछ सा बीच, बस और नहीं दिखा सकते यार। न्यूड बीच से निकल गया हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मतलब मैं न्यूड बीच पहले गया हूँ, देखा है मैंने, बट मैं कभी, मतलब मैं पूरे कपड़े उतार के कभी गया नहीं, बट आज करा। मैंने कहा ठीक है यार, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान, मतलब इंसान ही है ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, आप समझ ही गए भाई, इतने इसमें क्या बोलूँ। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगा था कि ऐसे कैसे लोग बस अपने सारे कपड़े निकाल के ऐसे लेट जाते हैं, बट यार आप बीच पे हो, किसी को कोई परवाह नहीं होती, जो आप करो आराम से लेटे रहो आराम से। और ये यूरोपियंस तो सन बेदिंग भी करते हैं, क्योंकि इनको टैन पसंद है, टैन स्किन, तो फिर अच्छा ऐसा ही है, मैंने भी करा कुछ टाइम के लिए यार। ऑफ कोर्स अब मेरे को कमेंट आएगा शायद कि भाई तुमने कुछ दिखाया तो नहीं, भाई आप खुद ही टाइटल से समझ लेना, न्यूड बीच है, न्यूड बीच पे कैसे दिखा सकते हो आप, यूट्यूब खुद ही सेंसर कर देगा। और मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता भाई कि जाके मैं लोगों के पिक्चरें लूँ या फिर ऐसे न्यूड बीच पे, यार ये मैं नहीं कर सकता, मेरे भी खुद मॉरल एथिक्स हैं जो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। वो आप समझ ही गए यार, समझदार हो ना भाई, इशारा काफ़ी है आप लोगों को। तो विद दैट सेड अभी चलते हैं भाई, ये रास्ता थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये ट्रेन ट्रैक्स क्रॉस करके जाता हूँ मैं, और फिर आगे मिलते हैं।
शाम हो चुकी है और मैं न्यूड बीच जाने के बाद एक जगह पे आया हूँ। वैसे सोच रहा था कल जाऊँ, बट मैंने देखा कि यार बस वहाँ से आई गई थी और मैंने सोचा कर ही लेते हैं। तो ये जगह पे आया हूँ। ऐसे कुछ बना हुआ है पीछे, इमारतें काफ़ी सारी हैं भाई, आपको पता ही है रशिया में हर जगह बनाई हुई है इन लोगों ने। इसको कहते हैं ओलंपिक पार्क। आई थिंक ये ओलंपिक्स के टाइम पे ना स्टेडियम टाइप बना हुआ है, ये ओलंपिक्स के टाइम पे यूज़ हुए होंगे। और ऐसा भी बना हुआ है अम्यूज़मेंट पार्क और ये सब। बट एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपको पता होगा शायद कि जॉर्जिया और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अबखाज़िया। अबखाज़िया यहाँ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। हालांकि मैं एंटर नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, बिकॉज भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास रशियन डबल एंट्री वीज़ा चाहिए। और अगर मैं अबखाज़िया रशिया की साइड से चला गया तो फिर मेरे को जॉर्जिया में कभी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंप लग गया अगर मेरे पासपोर्ट पे तो फिर नहीं कर सकते हम लोग। तो ये ठीक है। और आप देख ही सकते हो पहाड़ आगे, जैसे मैंने दिखाए ही होंगे, पहाड़ दिख रहे हैं। और होपफुली भाई अगर फिंगर्स क्रॉस कर पाया मैं, मेरे हाथ में बहुत चीज़ें होती हैं, फिंगर्स क्रॉस, हम कुछ दिनों में रशिया निकलने से पहले हम लोग माउंटेन्स में एक बार अपना प्रस्थान रख के जाएंगे, क्योंकि यार मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा अभी। यार वो देख रहे हो आप, अपने इंडिया का फ्लैग है, ये उड़ नहीं रहा अभी, हवा नहीं आ रही होगी यहाँ पे, बट अपने इंडिया का फ्लैग है। ओलंपिक्स के टाइम पे ऑफ कोर्स ऐसी सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं सारे ऐसे, ये पाकिस्तान का, आइसलैंड का, चिले का, बहुत सारे कंट्रीज़ के, सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स है ऐसे बना हुआ है पेविलियन। तो यार ऐसा कुछ है ओल्गा का अपार्टमेंट, देख सकते हो। ये मेरा बेड है, ये मैंने अभी बनाया है। यार ऑफ कोर्स काउच सर्फिंग कर रहे हो तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। बेड मैंने खुद बनाया है। ऐसे सर्फिंग का शौक़ है ओल्गा को, स्नोबोर्डिंग, सर्फिंग का सबका शौक़ है, एडवेंचर का काफ़ी शौक़ है ओल्गा को। वो उनका बेड है ऊपर, ये मेरा वाला है, यहाँ पे मैंने अपना बना लिया। ऐसा टेबल है, किचन है, और ये इनका वर्क एरिया है। और यार ये जैसे मैप मैंने दिखाया था कि ओल्गा कहाँ कहाँ गई है, उसका मैप है। यहाँ पे इनका सिंहासन, और यहाँ पे काम करती हैं ओल्गा पूरे दिन। काउच सर्फिंग करना ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किसी और के घर में आके कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि यार अल्टीमेटली आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के घर में। तो यार काउच सर्फिंग को कभी गलत वे में मत लेना। समझदारों को इशारा काफ़ी है भाई, मैं आप समझ गए ना भाई, समझदार हो आप लोग सब। तो काउच सर्फिंग इज़ एन एक्सचेंज बिटवीन ट्रैवलर्स, कि यार आप इनके घर पे आते हो, कुछ दो बातें आप शेयर करोगे, दो बातें दूसरा बंदा शेयर करेगा, और एक कनेक्शन बनता है। तो काउच सर्फिंग ने मेरे को काफ़ी रशिया का एक बहुत डीपर एक्सपीरियंस दिया है। बस इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों को काउच सर्फिंग अभी भी नहीं पता है। जिनको पता है यार अच्छी बात है, और ट्रैवल कर रहे हो तो यार एटलीस्ट एक बार काउच सर्फिंग ज़रूर करना। एक बार करोगे ना तो आपको बार बार करने का मन करेगा काउच सर्फिंग। एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है। इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, दस विदानिया।